Good morning, students. Hope you will be fine at your respective places. In continuation to the last topic, what we were discussing the nutrient cycling, or we were discussing the biochemical cycle. Now, according to the definition of the biochemical cycle, or what we call as a nutrient cycling, we mean that it is the exchange of materials. Simply, it is simply the exchange of materials between living and non-living, between living and non-living components of the environment, of the biosphere. So, simple definition of the nutrient cycling is the exchange of materials between the living organism, between the biotic component and the abiotic component of the environment. It is called as nutrient cycling, and we have already studied that there are the two types of the nutrient cycling. There are the two types of the biochemical cycling. First one is the gaseous cycling, and second one is the sedimentary cycling, and we have somewhat discussed them. Today we are going to discuss the aspects. what जो हमारा टॉपिक है, that is the aspects of a nutrient cycle. There are mainly three aspects of the nutrient cycle. First one, that is called as input of nutrients. What do you mean by the input of nutrients? It simply means when an ecosystem receives the nutrients from the outside, when an ecosystem receives the nutrients from an external environment, when an ecosystem receives the nutrient from an external sources, and then it stores them for their use, then it stores them for their utilization in the biological processes for the growth and development of the living organisms. So, input of nutrients, how we can define this as when an ecosystem, it is इस तरह हम लिखेंगे, in this an ecosystem receives nutrients from the external sources and then stores them for their utilization in the biological processes for the growth and development of the living organisms. Simply, what do we mean by the input of nutrients? What happens in this, we can say influx of the nutrients. What happens in this process? In this process, simply what we will see, an ecosystem, it receives the nutrients from the external source and then it stores the nutrients,
it stores the nutrients for their utilization in the biological processes for the growth and development of the living organism. So what happens in this case? When the ecosystem, it receives the nutrients from the external source and then it stores them. It stores these nutrients and stores the nutrients in the ecosystem, and then these nutrients, they are used, they are utilized in the biological processes for the growth and development of the living organism. Now there are some sources, there are some ways, by which these nutrients, where we will see the influx of these nutrients takes place. First one, wet deposition. Simple, ये आपने देखा होगा. In this what we will see, जो nutrient जो होते हैं, they are received rather in the form of dissolved salt along with the rainfall. हम क्या कहेंगे? Nutrients जो होते हैं, they are received in the form of dissolved salts along with the rainfall. ये हुआ एक. बारिशें होती हैं, उसमें कुछ हम देखते हैं साल्ट जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं when they fall, when they precipitate, when they fall on the earth. So हम जो इकोसिस्टम होता है, it gets these nutrients. सेकंड जो हमारे पास है, that is the dry deposition. सिंपली ड्राई डिपोजिशन में हम क्या देते हैं कि जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो हमारे इस इकोसिस्टम में दाखिल हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट्स इन द पार्टिकुलर स्टेट फ्रॉम डस्ट फॉल. न्यूट्रेंट जो होते हैं, न्यूट्रेंट्स दे एंटर इनटू एन ecosystem in particulate state. बस सिंपल इतनी. थर्ड हमारे पास है, that is symbiotic. or we can say biological fixation. Fixation of nitrogen in soil. We have studied these rhizobium, how it fixes the atmospheric nitrogen and how it is this nitrogen is available to the soil. फोर्थ जो हम कहते हैं डी पार्ट, आपने पढ़ा होगा वेदरिंग ऑफ रॉक. जो हमने पढ़ा कि what we'll see during the weathering of the rock, there is the release of nutrients. सीधा हम लिखेंगे कि कुछ न्यूट्रेंट जो रिलीज हो जाते हैं when the big rock it breaks down. A release of nutrients, what we call as during वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग ऑफ रॉक्स में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी रॉक जो होते हैं, पेरेंट रॉक होते हैं, इट ब्रेक्स डाउन, ये ब्रेकअप हो जाते हैं इनटू द स्मॉल एंड स्मॉलर पीसेस. एंड ड्यूरिंग दैट ब्रेकअप, ड्यूरिंग दैट वेदरिंग अप, व्हाट विल सी द न्यूट्रिएंट जो होते हैं दे गेट मिक्सड अप विद दिस सॉइल एंड दे गेट एंटर्स इनटू आवर इकोसिस्टम. दिस वन एस्पेक्ट. सेकंड एस्पेक्ट जो हमारे पास है, दैट इज द आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसमें क्या होते हैं, इन न्यूट्रिएंट जो होते हैं दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द इकोसिस्टम. पहले में हमने क्या देखा कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं दे आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, दे आर रिसीव्ड. जो हम देखते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है, इट रिसीव्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड देन
It stores those nutrients, and these nutrients are then used in the biological processes for the growth and development of the organism. लेकिन जो हमारा second one है कि when the nutrients they are removed from the ecosystem, that is called as the output of the nutrients, and it takes place by different methods. Number first, loss of nutrients. Loss of nutrients हम क्या देखते हैं, वी हैव गॉट ड्यूरिंग रन ऑफ वाटर एंड सॉइल इरोजन. इसमें हम देखते हैं कि कुछ न्यूट्रन लाइक कैल्शियम जो मैग्नीशियम होता है दे गेट लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल. उससे हम क्या देखते हैं कि जब सॉइल इरोजन हो जाती है हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि दैट सॉइल इट लूजेज द न्यूट्रिएंट्स एंड द मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर मेनली द कैल्शियम मैग्नीशियम दे आर लॉस्ट. सेकंड जो हम देखते हैं कि डिनाइट्रिफिकेशन. डिनाइट्रिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि देयर टेक्स प्लेस द कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स into nitrates. Now what happens in this डिनाइट्रिफिकेशन इनटू अमोनिया? इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हम देखते हैं वी हैव गॉट सम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक सीडोमोनास. हम क्या देखते हैं कि दैट दे कन्वर्ट्स द नाइट्रेट, दैट एक प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डिनाइट्रिफिकेशन, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कन्वर्ट जो होता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट्स, एंड देन we will see it gets converted into the ammonia. Denitrification हम क्या देखते हैं कि into ammonia, and then it gets converted into the free nitrogen into the air because of some bacteria जो है कि living organism they take part in that. For example we have got the pseudomonas. हाँ, कभी कभार हम देखते हैं कि ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन में हम क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स और ट्रांसपोर्टेशन हम लॉग्स देखते हैं फ्रॉम वुड. वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं दे गेट लॉस्ट, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द इकोसिस्टम. सो हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉग्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स, या हमारे पास एक और है दैट इज हार्वेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. अब जो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है हाउ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस इकोसिस्टम. फर्स्ट वन देयर इज द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ड्यूरिंग द रन ऑफ वाटर या ड्यूरिंग द सॉइल इरोजन. सेकंड हम देखते हैं कि देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, या वी विल सी एक और देयर इज द हार्वेस्टिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप. ड्यूरिंग दैट टाइम सम न्यूट्रिएंट्स दे आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस इकोसिस्टम. थर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिनाइट्रिफिकेशन हम क्या देखते हैं डिनाइट्रिफिकेशन इनटू हम देखते हैं कि इनटू अमोनिया एंड देन बैक देन इनटू द फ्री नाइट्रोजन इनटू द एयर. इसमें कंप्लीट वो प्रोसेस हो जाती है कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू अमोनिया. जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स वो किस में तब्दील हो जाते हैं, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स इनटू अमोनिया. जो नाइट्राइट्स होते हैं और जो नाइट्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट किस में किए जाते हैं इनटू द अमोनिया and then into free nitrogen into the air. Now हमारे इकोसिस्टम की एक बात है कि when जो हमारे पास इकोसिस्टम ऐसा होता है that there is when it is in the undisturbed state. and undisturbed इकोसिस्टम हमारे पास ऐसा होता है which is generally इन बैलेंस स्टेट में होता है कि वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि देयर इज़ अ फिजियोलॉजिकल बैलेंस, एक किस्म की बैलेंस होती है बिटवीन द इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या इनफ्लेक्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सफ्लेक्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, बिटवीन द इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द आउटपुट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स.
और उससे हम क्या देखते हैं कि जो न्यूट्रेंट साइकिल जो होते हैं दे रिमेन मोर और लेस इन द बैलेंस स्टेट। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाती है, लाइक फेलिंग ऑफ ट्रीज, कभी कभार फॉरेस्ट फायर हो जाता है, या कभी कभार हम देखते हैं कि देयर इज़ द आउटब्रेक ऑफ पैथोजेनिक इंसेक्ट्स, सॉइल ओरिजन हो जाती है, लैंडस्लाइड्स हो जाती है, विच मेक्स देम, उससे क्या हमारा इकोसिस्टम ऐसा हो जाता है, इट कम्स इनटू द अनबैलेंस स्टेट and it becomes unstable rather. So what we will see, majority जो हम देखते हैं, एक जो हमारा जो ecosystem which is an undisturbed ecosystem, वहाँ पर हम देखते हैं that it generally remains in a balanced state. वहाँ पर हम क्या देखते हैं, because there is a balance between the influx of nutrients and exflux of nutrients, or we can say inflow of input of nutrients and output of nutrients. वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एंड लेकिन उससे हमारा जो न्यूट्रेंट साइकिल जो होता है इट रिमेन समवट इन बैलेंस स्टेट, लेकिन बट देयर आर सम डिस्टर्बेंसेस विच टेक प्लेस इन आवर इकोसिस्टम, लाइक फेलिंग ऑफ ट्रीज, लाइक वह लैंडस्लाइड्स आता है, सॉइल इरोजन हो जाती है, उससे हम क्या देखते हैं कि विच मेक्स आवर इकोसिस्टम इन ए अनबैलेंस्ड, या हम कहेंगे अनस्टेबल। थर्ड जो स्टेप हमारे पास जो आता है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ internal cycling of nutrients. These are the third aspect, cycling of nutrients. This is the third topic, the third aspect. अब इसमें क्या हम देखते हैं कि इट इन्वॉल्व्स, इसमें कुछ स्टेप्स आ जाता है। पहला जो हमारे पास आता है दैट इज द रीजेनरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम क्या देखते हैं कि खासकर जब हम देखते हैं कि डिकम्पोशन हो जाती है, डिकम्पोशन बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, सम न्यूट्रेंट जो होते हैं दे आर रिजनरेटेड। सेकंड जो हम देखते हैं कि व्हाट वी विल सी, जो न्यूट्रेंट्स होते हैं दे अंडरगो बोथ एब्जॉर्प्शन एंड रिजनरेशन। न्यूट्रेंट जो होते हैं दे अंडरगो बोथ प्रोसेस, दैट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड रिजनरेशन प्रोसेस हो जाती है। उससे क्या हो जाता इन दिस सॉइल, ड्यू टू विच a dynamic state of nutrients is established, is developed. अब जो न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाता है, देयर इज द अपटेक ऑफ द न्यूट्रेंट्स फ्रॉम सॉइल बाय द प्लांट्स, ताकि वो न्यूट्रेंट्स उस प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आ जाते हैं। गोया हम एब्जॉर्प्शन में क्या देखते हैं कि दैट देयर टेक्स प्लेस द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयर इज द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द व्हाट वी विल कॉल्ड एज द फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स, and then these nutrients are used by the plants for their growth and development. कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि न्यूट्रेंट जो होते हैं दे आर रिसाइकल्ड बैक इनटू द सॉइल, दे आर रिसाइकल्ड बैक इन द सॉइल। हम लीफ फॉल देखते हैं, लिटर फॉल देखते हैं फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज, या एनिमल रिमेन जो हमारे पास होता है, या फिश सेल हम देखते हैं कि मैटर ऑफ द एनिमल, उससे हम क्या देखते हैं कि जो कंप्लीट डिकम्पोशन हो जाते हैं, जो न्यूट्रेंट जो होता है वो फिर जल्दी जल्दी वापस चले आते हैं किस में, हमारे इस इको सिस्टम में। गोया वहाँ पर डिकम्पोशन हो जाती है। एंड एक और हम देखते हैं कि जो डिट्यूरस या रूट डिट्यूरस, ग्राउंड डिट्यूरस, या हमारे पास जो रूट डिट्यूरस होते हैं, या हम कहेंगे सिंपली जो डिकम्पोशन हो जाती है, डिकम्पोज्ड व्हाट वी कॉल डिकम्पोशन क्या हो जाती है, जो न्यूट्रेंट जो होते हैं दे आर रिजनरेटेड एंड देन दे आर रीयूज्ड बाय द प्लांट्स। ये देखा गया है when the rate of uptake of nutrients is more than the amount of nutrients recycled, then a part of the uptake nutrients is retained in a standing crop.
ये देखा गया है व्हेन ए रेट ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल्ड, कि रिसाइकलिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो ज़्यादा है, और न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उससे हम क्या देखते हैं कि अ पार्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अपटेक न्यूट्रिएंट्स दैट इज रिटेन्ड इन द स्टैंडिंग क्रॉप एंड दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड दिस रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम क्या देखते, इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। सो रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन ऑफ इज इक्वल टू अपटेक माइनस रिसाइकल। सो अब जो साइकिलिंग होती है न्यूट्रेंट की, जो साइकिलिंग होती है द साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स इट इन व्हाट वी विल सी हियर, व्हाट वी विल सी, जो हम देखते हैं कि फर्स्ट हम देखते हैं कि देयर इज द रिजनरेशन ऑफ द न्यूट्रेंट्स एंड दैट रिजनरेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स इट मेनली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन by the decomposers like bacteria and fungi. Nutrient जो होते हैं they undergo both absorption as well as what we call a regeneration in the soil. उससे हम क्या देखते हैं, सॉइल में हो जाते हैं। सेकंड वन न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन हम देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या हो जाता है, अपटेक ऑफ न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट एंड देन दीज न्यूट्रेंट्स आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि न्यूट्रेंट जो होते हैं दे आर रिसाइकल्ड बैक इनटू द सॉइल ड्यूरिंग द, हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन हो जाती है ड्यूरिंग द व्हाट वी कॉल्ड एज द एनिमल रिमेन्स होते हैं, पेड़ से ट्विंग्स, लीव्स, ब्रांचेस ज़मीन पर पड़ जाते हैं, या कभी कभार फेशियल मैटर जो होता है ऑफ द एनिमल्स। कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि व्हेन द रेट ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिसाइकल्ड, अपटेक इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, रिसाइकलिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, देन ए पार्ट ऑफ हम क्या देखते हैं, अपटेक न्यूट्रेंट्स इज रिटेन्ड इन द क्रॉप एंड दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दिस रिटेंशन क्या होता है, इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम एंड दिस रिटेंशन इज इक्वल टू अपटेक माइनस रिसाइकल। सो रेट्स ऑफ हम कहेंगे जो रेट्स होते हैं न्यूट्रेंट अपटेक, रिसाइकल की या रिटेंशन की, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, दे आर नॉट सेम। न्यूट्रेंट अपटेक, रिसाइकल या रिटेंशन, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम एंड दीज कैन बी डिटरमाइंड रादर बाय डिफरेंट केमिकल मेथड्स, वो हम देख सकते हैं। एंड टुमारो व्हाट वी विल सी, वी विल स्टार्ट सम साइकिल्स which we have to discuss and these were mainly the aspects of the nutrient cycle। उसमें हमारे पास तीन, एक होता है इनपुट ऑफ न्यूट्रेंट, जब हमारा इकोसिस्टम इट रिसीव्स द न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड इट देन स्टोर्स दोज न्यूट्रिएंट्स then stores them and for their then these nutrients they are used for in the biological processes for the growth and development of the living। second में हम क्या देखते हैं, there is the output of nutrients, nutrient जो होते हैं they are removed from the what we called as this from the ecosystem। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हम देख सॉइल, इसमें कौन प्रोसेस होता है, दैट इज़ द रन ऑफ वाटर, सॉइल इरोजन हो जाती है, डिनाइट्रिफिकेशन हो जाए, डिनाइट्रिफिकेशन में हम क्या देखते हैं, जो कन्वर्जन होती है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू अमोनिया एंड देन इनटू द व्हाट वी कॉल्ड एज द नाइट्रोजन। थर्ड हम देखते हैं कि कभी कभार हम देख ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, या हम ये देख सकते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप, उससे भी न्यूट्रेंट जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं हमारे इस इकोसिस्टम। एंड द लास्ट वन इज द साइकिलिंग ऑफ द न्यूट्रेंट्स विच इज़ द मेन एस्पेक्ट, जिससे हमारा जो इकोसिस्टम जो होता है इट कम्स इनटू द बैलेंस स्टेट, इट कम्स इनटू द हीमोस्टेट्स।
So we will see some process they take place, that is the regeneration and the absorption process they are taking place. And कभी कभार ये देखा गया है when the uptake of the nutrients is more than the amount of nutrients recycled, then a part of uptake nutrients is retained in the standing crop, and this is called as a retention of nutrients, and this retention is equal to uptake minus recycle. It is all for today. In the next topic we will start some nutrient cycles, that is the carbon and phosphorus. Until then, God bless you. Thanks.